Physiography. Physiography is an area of an area is the outcome of structure. First term is structure. पहाड़ कितने हैं या soil किस तरह दी है process and stage of development. The land of India is characterized by great diversity. India has got great diversity in its physical features. The North India has a vast expanse of rugged topography. Rugged topography North India there, consisting of a series of mountain ranges with varied peaks, beautiful valleys and deep gorges. The South India consists of stable tableland. Plateau उधर साढ़े कोले ज़्यादा है. With highly dissected plateaus and denuded rocks. परमियन एरा या आर्कियन एरा ਨੂੰ ਸਾਡਾ साउथ इंडिया सारा बिलोंग करता है. मैं जब आपको जियोलॉजी करवाऊंगा then you will be able to understand it in a better way. In between two lies North Indian plains. In between these two lies North Indian plains. Now physiography, location, area and extent, physical features, mountain, Great Plains, peninsular uplands, and then Indian desert, and then Indian coast. Then India's neighborhood, important facts about mountain passes and valleys, and then climate. So there is abundance of facts, but we shouldn't worry if we don't remember all the facts. So the very first thing, India lies in the northeast of the hemisphere between 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes north latitude and 68 degree east with respect to Greenwich village and 97 degree of east longitude. The southernmost point is 6 degree 45 minutes north latitude to cover the last island of the Nicobar Island. The southern extreme is called Indra Point or Pygmalion Point. The Tropic of Cancer, 23.5 degree north latitude, passes through the middle of India, crosses the states of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. The total length of the coastal land frontier is this kilometers, passes through marshy lands and then desert, level plains, rugged mountains, snow-covered areas and thick forests. Besides land, there is a maritime boundary of 6,100 kilometers along the mainland and about 7,500 kilometers if we add the coastal areas of islands. Coastline of Andaman, Nicobar and Lakshadweep are added to the coastal line of the mainland. What does this mean? This is the coastal island, this is the coastal length of the mainland. And if we add the length of Andaman Nicobar, then what do we get is the length becomes 7,516 kilometers. And now, India and Afghanistan and Pakistan, Pakistan-Afghanistan international boundary is called Durand Line. Durand Line, आपको दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए. जैसे Red Cliff Line was drawn on the chest of Punjabis. They have done injustice to Punjabis. Half of the Punjabis are in Pakistan and half of them are in Hindustan.
और इसी तरह से जो डूरॉन्ट लाइन है इसने ब्लोचिस को डिवाइड किया है, ब्लोचिस को ब्लोचिस के साथ इंजस्टिस किया है। डूरॉन्ट लाइन determines as military and strategic border between British India and Afghanistan। डूरॉन्ट लाइन की बात है। The India-China boundary, 4,225 kilometers, is a natural boundary running along Himalayan ranges and is based on various treaties. In the eastern part, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा हिस्सा है, जो this is the eastern part, अगर हम इस मैप में इसको देखें, this is the eastern part, जो ये वाला part है, ये हमारे पास eastern part है, and the boundary between द ईस्टर्न पार्ट में हमारे पास जो ये लाइन है, अरुणाचल प्रदेश वाली जो लाइन है, ये हमारे पास मैकमोहन लाइन, दिस इज मैकमोहन लाइन। भूटान के पास ये हमारे पास भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश का जो ऐसे एनवेल्प बनता है, तो ये हमारे पास मैकमोहन लाइन है। ये वाली लाइन यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, तो दिस इज द मैकमोहन लाइन। तो अब आप एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, the boundary between Pakistan and Bangladesh, that is East Pakistan, was finalized at the time of partition by Radcliffe Award. The Teen Bhiga Corridor is a strip of land belonging to India, is a part of West Bengal, lies adjacent to Bangladeshi border. In 1947, the border between India and Bangladesh was also demarcated by Radcliffe। तीन भीगा कॉरिडोर हमारा ना पीछे एक एक्सचेंज हुआ था। फर्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्राइड दैट बट ममता बनर्जी रिफ्यूज, एंड ड्यूरिंग Modi era, so Indian pockets inside Bangladesh and Bangladeshi pockets inside India, they were exchanged। एक बेरू भाई केस है, वो जब हम इसमें पॉलिटी में करेंगे डिस्कस, देन आई विल एक्सप्लेन दिस मैटर इन डिटेल। तो अब हम थोड़े सा ये जो हमारे नक्शे हैं, मैप सारा वगैरह को देखें। दिस इज द इंदिरा कॉल पॉइंट, और ये हमारे पास एक नाउ दिस एरिया इज नॉट विद इंडिया, दिस जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो मैं अगर इसको ये एरिया पाकिस्तान के पास अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं, और जो ये एरिया इतना है ये चाइना के पास है, और यहाँ से भी थोड़ा सा एरिया ऐसे बनता है जो पाकिस्तान के पास है। ये एरिया हमारा चाइना के पास, अगर मैं इस मैप को यहाँ पे कलर करूं, तो दिस एरिया इज विद चाइना, दिस एरिया इज विद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये भी थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान के पास है। तो इंदिरा कॉल इस तरह से हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन जो हम क्लेम करते हैं वो ये पॉइंट क्लेम, और उसके बाद ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुगारियाना, और ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, हमारे लैंड मास का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है, ऐसे आप इसे देख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसके बीच में से पास करती है। और अब दो तीन हमारे पास लाइंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, और इसी तरह से 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। ये एक हमारे पास 10 डिग्री चैनल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ 9 को, दिस इज 9 डिग्री चैनल, और ये हमारे पास दिस इज 8 डिग्री चैनल, और ये हमारे पास 10 डिग्री चैनल है, वी कैन हाईलाइट इट। और ये हमारे जो चैनल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
So this is 9-degree channel. 9-degree channel separates Minicoy from Lakshadweep. 8-degree channel separates Minicoy from Maldives जो इसके नीचे है. और अब जो 10-degree channel है मेरे पास, this separates little Andaman from Nicobar. और अब हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा से इसके फैक्ट्स पढ़ लें. India is only country which has given its nature to an ocean. Sorry, not nature but name. Indian Ocean. ये 46 कंट्रीज को सर्कल करता है, 7 आइलैंड स्टेट्स को और 12 लैंडलॉक कंट्रीज को. इंडिया कमांड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अबाउट 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर and which is roughly 0.57% of the area of the earth, 2.4% of the total land mass of the hemisphere. India is roughly quadrangular in shape. It measures about 3,214 kilometers from north to south and 2,933 kilometers from east to west. The difference is just of 281 kilometers. Because of great longitudinal extent, the difference between the local times of east and west extremes is 2 hours. जो गुजरात का यहाँ पे एरिया है, जो किबिथू और ये जो हमारे पास गुगारियाना और किबिथू के बीच जो टाइम का गैप है, दैट इज अबाउट 2 आवर्स. वो हमारे पास रफली 2 आवर्स के पास है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें आने वाला है, that is 2 hours. To avoid the confusion with regard to the time at different places of the country, तो हमारे पास 82 degree 30 minutes east longitude is taken as a standard time. ये इलाहाबाद के पास में से पास करता है. तो India's standard meridian passes through Mirzapur in UP. The Tropic of Cancer divides India in almost 2 equal parts. Note it down. Tropic of Cancer divides India in almost 2 equal parts. Thus, the northern half of India is situated entirely in the northern hemisphere and also belongs to the eastern hemisphere because India is east to the prime meridian. प्राइम मेरिडियन कौन सी है? जो लंदन के पास एक गांव है ग्रीन बीच विलेज, उसमें से पास करती है, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. तो नेक्स्ट भी हमारे पास एक फैक्ट है. आफ्टर रशिया, चाइना एंड कनाडा, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया इज 7th लार्जेस्ट. India is 7th largest country of the world. Its area is almost equal to the area of Europe, excluding Russia. 1/3 of Canada, 1/5 of Russia, 8 times of Japan, 12 times of UK. The population size, India is second giant country in the world after China. Its population is more than the combined population of USA, Russia, Australia, Canada, and Japan. There are only 4 countries which have got more population than UP. हमारे यूपी से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज केवल 4 हैं और उसमें ब्राज़ील आता है, यूएसए आता है, रशिया आता है और कनाडा शायद ये countries हैं. The eastern boundaries of India are formed by a complex chain of Himalayan offshoot consisting of Mishmi. ये सभी hills हम देखेंगे. Mishmi Hills, Patkai Bum, Naga Hills, Mizo Hills भी हैं उसमें, and then Braille Range, Mizo Hills, and finally Majestic
अर्कन योमा माउंटेन, ये बर्मा का है। जो ये माउंटेन है ना हमारे पास, अर्कन योमा, तो ये बर्मा का माउंटेन है। बट ये ऑड लगता है, इसलिए आई विल चेंज द कलर। तो अर्कन योमा जो है ये बर्मा का माउंटेन है। तो ये बर्मा का माउंटेन। द अर्कन योमा is submerged in Bay of Bengal for sufficiently long stretch and emerges again in the form of Andaman Nicobar। इसके लिए आपको नक्शा देखना। तो यहाँ पे जो, अगर मैं अर्कन योमा को ड्रॉ करूं तो ये यहाँ पे ऐसे है हमारे पास अर्कन योमा। तो इसको ये बोलते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डूब जाता है और अंडमान निकोबार में आके फिर बाहर निकल आता है। तो दिस इज व्हाट इज सैड अबाउट इट। तो इसके बाद हमारे पास द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश क्रिस क्रॉसेस द वास्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दिस बाउंड्री runs is not even a small mount or hills which could be used for demarcating the boundary between the two countries. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, and Arunachal Pradesh are the states lying completely in the Himalayas. Himachal Pradesh, Sikkim, and Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir. हमारे जो अनंतपुर साहब और नंगल है ना, तो यहाँ पे भी शिवालिक्स के माउंटेन्स हैं। मतलब कि यहाँ पे शिवालिक्स एंड होते हैं, वहां से पंजाब शुरू होता है। तो हिमाचल प्रदेश इज एब्सोल्युटली इनसाइड द हिमालय। जो उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड के मामले में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। उत्तराखंड लाइज पार्टली इन हिमालयज एंड पार्टली इन नॉर्दर्न प्लेन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है। तो दे फॉर्म बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू, दे फॉर्म पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आर द स्टेट्स कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लाई करता है। Among our union territories, Daman and Diu have sea boundaries. तो जो इनके हमारे पास जो है वो सी बाउंड्रीज है। Next is the Indian states on international boundaries, other countries और countries within bracket। गुजरात की पाकिस्तान के साथ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, पंजाब की पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर की चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ, हिमाचल की चाइना के साथ, बिहार की नेपाल के साथ, उत्तराखंड की चाइना और नेपाल, और उत्तर प्रदेश की सिंपली नेपाल, और जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है इसकी भूटान और नेपाल, एंड देन बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल की भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल एक ऐसा कंट्री है, सॉरी स्टेट है, जिसकी बाउंड्री जो है 3 कंट्रीज के साथ लगती है। और उसके बाद अगला कौन सा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो वी शुड टेक ए सीरियस नोट ऑफ दिस फैक्ट कि जो हमारे पास सिक्किम की बाउंड्री है ये भी 3 स्टेट्स के साथ लगती है, नो सॉरी कंट्रीज के साथ लगती है। और इसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी बाउंड्री भी जो 3 कंट्रीज के साथ लगती है, भूटान, चाइना और म्यांमार। और नागालैंड की बर्मा से ही लगती है, मणिपुर की म्यांमार से।
मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से, मेघालय की बांग्लादेश से, त्रिपुरा बांग्लादेश, असम की भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये भी नोट कीजिए। तो तीन हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री तीन कंट्रियों के साथ लगती है। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आर द ओनली लैंडलॉक्ड स्टेट्स which are neither on the coast nor on the international border। अगली लाइन जरूर याद रखिए, या जिनका कोस्ट नहीं है या जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं है। व्हाट अबाउट हरियाणा? हरियाणा का इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं बनता और कोस्ट भी नहीं बनता, इसने हरियाणा इंक्लूड किया किया भाई। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड कंट्रीज जिनके साथ बाउंड्री कॉमन है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर से, चाइना की जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नेपाल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, भूटान की सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। फोर एंड्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथू, हम इसे देख चुके हैं। सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ लोहित रिवर, ये याद रखें, लोहित ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र, separating India from China and Tibet region. It's a small village with a population at the altitude of 3,350 meters in Arunachal Pradesh. Westernmost point is situated in Gujarat called Buhar Mota. The region is famous for its harsh climate of 45 degrees Celsius in summer and 20 degrees Celsius in winter. During monsoon season, this region looks like tortoise surrounded by seawater. Northernmost point of India has been controversial ever since India's independence. Siachen Glacier in the state of J&K is the northernmost boundary of India according to official division of India during the time of independence. Siachen Glacier. The southernmost point of the mainland is Kanyakumari district in Tamil Nadu, formerly known as Cape Comorin. It's the second largest and urbanized part of Tamil Nadu. Indira Point is the village in Nicobar district of Andaman and Nicobar Island. It is located in Great Nicobar Tehsil. It is the location of southernmost point of India's territory. तो इसको तो हम देख चुके हैं। तो एरिया वाइज जो राजस्थान इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। लोकेशन वाइज इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं। इंडिया पॉइंट, इंडोनेशिया, ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट, सॉरी, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया दोनों के विचकार ग्रेट चैनल है। और लिटिल अंडमान एंड निकोबार 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, मालदीव्स एंड मिनिकॉय 8 डिग्री एंड इंडिया श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बाद फिजिकल फीचर्स हमारे पास क्या है। द ओल्डेस्ट लैंड मास जो हमारे पास है वो पेनिनसुला। Indian Peninsula was a part of Gondwana land. The Gondwana included India, Australia, Africa, South America as
one single landmass. The controversial currents, sorry, the convectional currents split the crust into a number of pieces, leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana towards north. The northward drift resulted in the collision of Indian plate with the Eurasian plate. यहाँ से हिमालयाज बनी. Due to this collision, the sedimentary deposits which were accumulated in geosynclinal, that is a long shallow depression between the two large landmass. एक तो हिमालयस वाला landmass हो गया, नीचे डायग्राम आएगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. Is known as Tithyas, were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. The Himalayan upliftment out of the Tithya sea-bound and subsidence of northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basins. In due course of time, this depression gradually got filled by deposition of sediments by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south. मैं इसको अभी आपको दिखाई देता हूँ. If I got this diagram, yes. ये इंडियन लैंडमास था, लंका इसके साथ ऐसे इसने आके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट को हिट किया. तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव गॉट यूरेशियन प्लेट, इसको इसने आके हिट किया और जब हिट किया तो आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो आर्म थी ना, यहाँ वाली आर्म, ये इसमें एंटेंगल हो गई, इसके साथ फंस गई, आपको सीधी भाषा में बोले. लेकिन ये पार्ट हिट, तो दिस एक्टेड एज एन एक्सल. ये पार्ट हिट होके थोड़ा सा बैक आ गया. जैसे ही ये पार्ट थोड़ा सा गैप आ गया तो हिमालयास और जो डेक्कन था इसमें एक गैप क्रिएट हो गया और उस गैप में फिर डिपोजिशन हुई और उससे नॉर्दर्न प्लेन्स बने. तो दिस इज व्हाट डू वी यूजुअली से. The flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of northern plain. ये मैं आपको अभी बताया. Geologically, peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass of Earth's surface. Peninsular plateau, जो हमारे पास है, this is one of the ancient landmass of the Earth. It was supposed to be one of the most stable land block. The Himalayas and the northern plain are the most recent landform. ज़्यादातर ये Pleistocene era को belong करते. From the viewpoint of geology, Himalayan mountain form an unstable zone. The whole mountain system of Himalayas are very youthful topography with conical peaks, V-shaped valleys and fast-flowing rivers. The northern plains are formed by alluvial deposits carried by the rivers from the mountains. The peninsular plateau is composed of, now they are hard matter, igneous and metamorphic rocks. Metamorphic rocks, they are made up from igneous as well as there is another form of rock, sedimentary rock. इनका एक साइकिल होता है. With gently rising hills and wide valleys. तो अब जो हिमालयास के टॉप वाला सामान है वो तो सेडिमेंट्स इतने जो माउंटेन्स हैं उनमें जो है हमारे पास सॉइल है, रॉक्स नहीं है. सॉइल को इजीली वाटर जो है वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं.
रॉक्स बड़ी हार्ड होती है और वहां से जो सेडिमेंट्स कैरी करना बड़ा टफ होता है, इसलिए अभी भी वहां पे वाइड वैलीज है। और आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री 10.6% is occupied by mountains, 18.5% by hills, and 27.7% by plateaus, and 43.2% by plains. तो सिविल सर्विसेज में आप मत के क्लरिकल नहीं पूछते परसेंटेज, तो एक दो क्वेश्चन भी नहीं आते पूरे 150 क्वेश्चन। वो ये पूछते हैं कि ऑर्डर क्या है, प्लेन्स के बाद हिल्स का एरिया, उसके बाद माउंटेन्स, उसके बाद हमारे पास जैसे हम लगाए प्लेन्स फॉलोड बाय प्लेट्यूज फॉलोड बाय हिल्स एंड फॉलोड बाय माउंटेन्स, so this should be the order, increasing or decreasing order. India may be divided into five major physiographic regions: northern mountains, great plains, peninsular uplands, Deccan जिसे बोलते हैं, the Indian coasts and islands, and Indian desert. तो अब जो थोड़ा सा नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, ये पीक्स मैं बाद में देखूंगा, पहले we will go through some of the maps. The region extends all along the northern frontiers, 2,500 kilometers, and width varies from 240 to 320 kilometers. The total area is about 5 lakh kilometers square. Himalayas represents the youngest mountain system and the highest folded mountains, आज चीज याद रखो, folded mountains, rising to over 8,000 meters above sea level and consisting of three parallel ranges: Greater Himalayas, then Lesser Himalayas, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, एंड देन आउटर हमारे पास शिवालिक। Himalayas are intersected by numerous valleys: Kashmir Valley, कारेवास, कारेवास कश्मीर के साथ लिंक्ड है, आप हमेशा याद रख लीजिए, एंड देन दून वैली, देहरादून वाली, एंड देन कांगड़ा, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत होते हैं, कुल्लू वैली, ये भी फ्लावर्स के लिए फेमस है, काठमांडू वैली, भागीरथी वैली नियर गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, एंड मंदाकिनी वैली नियर केदारनाथ। और ये हमारे पास, मैं इनको थोड़ा सा बाद में देखूंगा, तो ये आपको एक गल्फ ऑफ मन्नार दिखा दें। तो दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार हमारे पास, और ये जो रूट एग्जिस्टिंग रूट है, अगर यहाँ से हमें एक रूट बन जाता है, तो ये एक प्रोजेक्ट है, उसको हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो ये रूट फॉलो होना शुरू हो जाएगा, और जो ये बड़े वाला रूट है इसको हम छोड़ दें। तो अब हमारे पास कुछ वैलीज हैं, ये मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में है, इंडिया की में नहीं है। कंचनजंगा, ये काराकोरम भी इंडिया में नहीं है, रॉन्गली क्लेम करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कंचनजंगा भी इंडिया में नहीं है जो पीक है, ठीक है ना। और उसके बाद धौलागिरी, ये नेपाल में है। नंगा पर्वत, ये इंडिया में है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इज इन नेपाल, और ग्लेशियर ब्रह्म, ये इंडिया में है। नंदा देवी भी इंडिया में है, माउंट कैमेट भी इंडिया में है, और गुरला मनधाता, ये तिब्बत में है। तो दिस नंगा माउंटेन वी विल सी वेदर इट इज इन इंडिया। मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि नंदा देवी बोलते हैं ज्यादातर। बात कॉल करी लेक्चर। Valleys and its locations: Araku Valley, Andhra Pradesh; Damodar Valley, Jharkhand and West Bengal; Dharma Valley, Uttarakhand; Doju Kau Valley, northeast part; Jauhar Valley, Uttarakhand; Markha Valley, Ladakh; Nubra याद रख लीजिए,
नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर, सैचिन ग्लेशियर, ये लिंक है। संगला वैली हिमाचल प्रदेश, सौर वैली उत्तराखंड, सुरू वैली लद्दाख, टोन्स वैली उत्तराखंड एंड युमथांग वैली सिक्किम। दामोदर वैली प्रोजेक्ट हुआ था, जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट अमेरिका की लाइंस पे हुआ। दामोदर रिवर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दामोदर वैली है, वेस्ट बंगाल में है। और इसका वेस्ट बंगाल और बिहार कहते थे पहले, अब वेस्ट बंगाल और झारखंड हो गया है। तो ये हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार को हमने देख लिया। तो हम बात कर रहे थे कि अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो जो सी लेन्स है इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है ये कट हो जाए। और अब हमारे पास एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैप्स देखेंगे, फिर इसको एक बार देखेंगे। टोटल लेंथ, ये तो बेसिकल फैक्ट्स है, द सब हिमालयस और शिवालिक्स, इनकी 2400 किलोमीटर टोटल लेंथ है इंडस जॉर्ज से टू ब्रह्मपुत्रा वैली। This is 2400 kilometers, or it is known as by various local names, Jammu Hills, and then Dundwa Range in Uttarakhand, Chauria Muria Hills in Nepal, Dafla, Miri, Abor and Mishmi Hills in Arunachal Pradesh. तो ये इसने इसके अलग-अलग जो segments ले लिए हैं. It is about 80 kilometer, lesser Himalayas, 80 kilometer wide. एवरेज हाइट हमारे पास 1300 to 5000 मीटर्स है. Important ranges तौलीतार, पीर पंजल, and then नागा टिब्बा, महाभारता रेंज, and then मसूरी, सिविल सर्विसेज की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है. The famous hill resort शिमला, then जैल, then रानी खेत, and then चक्राता, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, Darjeeling, etc., are situated over these ranges. Lesser Himalayas or Himachal. Along the slopes are found a number of small pastures, marsh in Kashmir, Gulmarg, Marg बोलते हैं, Gulmarg, Sonmarg, Tanmarg, and Bugyal and Payar in Uttarakhand. तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक बार मैं पासेस दिखा दूं क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बोरिंग हो जाएगा. आपको पासेस दिखाता हूं एक बार. तो ये तो कुछ माउंटेन्स हैं. वी विल हैव ए लुक ऑन मैप्स, इसको बाद में पढ़ते हैं क्योंकि अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. काराकोरम रेंज इंडिया में नहीं है, K2 इंडिया में नहीं. जो नंदा देवी है दिस इज इनसाइड इंडिया. एक नंगा पर्वत, तो दिस इज कंगलू कांगड़ी. ये तो सारा हमारे पास है ही नहीं है ना, तो दिस पोर्शन इज विद चाइना. तो ये रेंज याद रख लीजिए, लद्दाख, जस्कार, पीर पंजल यहाँ पे है, काराकोरम उसके ऊपर है. तो दिस इज कंचनजंगा, बट द पीक लाइज इन नेपाल. और उसके बाद ये डाफला हिल्स हैं हमारे पास, मिशमी हिल्स हैं, पटकई बम है, मिकिर हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, बुरेल रेंज है, मीजो हिल्स हैं, गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं और जंतियाला हिल्स. जंतियाला, खासी, गारो, बुरेल, मिकिर, मीजो, ये सभी हमने ना अभी जब उसमें पढ़ रहे थे हिमालयस में तो इनके नाम लिए थे. नागा हिल्स, दिस इज मिकिर हिल्स, पटकई बम, and then Mishmi Hills अरुणाचल प्रदेश में, and then डाफला, दिस इज डाफला. और उसके बाद कंचनजंगा की बात हम कर रहे थे, एंड देन वी टॉक अबाउट नंदा देवी. और ये कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ ये मतलब कि हिल्स की हमने बातें की हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट मैं मैप देखना चाहूँगा, ये तो साउथ का, इसको मैं थोड़ा सा अभी
इग्नोर करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास सिमिलर मैप है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस आप इसमें एक बमला देखिए, ला का मतलब पास होता है, तो दिस इज बमला पास, और यहाँ पे एवरेस्ट है हमारे पास। ये मानसरोवर लेक है, ये कैलाश रेंज है, और इसमें रेंजेस के नाम लिख रखे हैं, लेकिन एवरी दिस इज शिवालिक जो सबसे आउटर साइड पे टुवर्ड्स इंडिया, दिस इज धौलागिरी। और ये हमारे पास एक ये पॉइंट है, नॉट इजीली रीडेबल। ये सुलेमान रेंज है पाकिस्तान की, और ये हिंदू कुश है, दिस इज हिंदू कुश। और ये टॉप पे हमारी पामिर नॉट है। कुनलुन माउंटेन्स और हिंदू कुश माउंटेन इस पे आके मीट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये पाकिस्तान का एरिया, दिस इज नंगा पर्वत, इसको भी हम रॉन्गली क्लेम करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। और इसके बाद अगर कोई नॉर्दर्न पार्ट, ये कुछ पासिस मैं एक बार दिखाना चाहता था, तो ये पासिस के लिए दिस मैप इज द परफेक्ट मैप फॉर पासिस। तो ये जो हमारे पास मैप है, दिस मैप इज परफेक्ट मैप फॉर पासिस। तो इसमें जी पासिस देखिए जी, पीर पंजल पास, जोजला पास, और खरदुंगला, ला का मतलब पास ही होता है। और इसके बाद लंका, ये तो सारे चाइना में है। जराला, ये पासेस के नाम याद है। लिपुलेख पास का अभी झगड़ा चल रहा है इंडिया का, न्यूज में ये बार बार आता है। दिस इज लिपुलेख। बारालाचा, उस नीति, मन्नू, शिपकीला पास, और चंगला पास, ये जराला, ये तो चाइना के पास है सभी। ये नथुला है, नथुला के पास ही जीपला पास है। एक चौला पास भी इसके पास ही है। और दिस इज बामला पास, ये याद कीजिए अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद ये डिफू, और ये हमारे पास पंगसाउ, ये अलग अलग पासेस हैं। नथुला पास 40 साल के बाद ट्रेड के लिए खोला गया था, तो इट्स a very important pass during the government of Dr. Manmohan Singh, and due to some reason it was closed again and open again during the era of Mr. Modi ji. और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पंजाब हिमालयस अप इंडस से सतलुज तक, सतलुज से काली तक कमाऊं, कमाऊं से तीस्ता तक नेपाल हिमालयस, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालयस। तो ये पासेज इसने फिर से दिखा रखे हैं, बट वी डोंट नीड टू सी इट अगेन एंड अगेन। तो ये पासेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो खाइबर पास के थ्रू मैक्सिमम अटैक्स हुए, गोमल पास अनकंफर्टेबल था, और ये सीधा मुल्तान में आता था। बोलन पास हाईली अनकंफर्टेबल था। इसके आगे सिंध का जो डेसर्ट आता था, फिर राजस्थान का डेसर्ट आता था। जो महमूद गजनी था, उसने लास्ट अटैक जो था जाटों को सबक सिखाने के लिए इसी पास से किया था। तो दिस इज लिपुलेख पास, इसके बारे में अभी भी बातें चल रही हैं। और ये हमारे पास बमला पास, नथुला पास, वेरी क्लियरली शोन, दिहांग पास, ये सभी पास, दिस इज डिफर पास। और कुछ घाट्स हैं, हल्दी घाटी, हम इसका नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप ने लड़ाई की थी हल्दी घाटी। एंड देन वी हैव गॉट दिस पास, बोर घाट, और ये हमारे पास थाल घाट है जिसको हम थाल घाट बोलते हैं, इसके कई नेम्स हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक पाल घाट है। तो ये घाट्स हैं, इंपॉर्टेंट घाट्स। और उसके बाद ये एक सिंपल मैप है, तो इसमें पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, दीज आर द लोअर गंगा प्लेन्स, माउथ ऑफ गेंजेस, ये है। ये हमारे पास मिडल प्लेन्स हैं, और मिडल प्लेन्स में गंगा जो है, जो मेन रिवर है।
और ये हमारे पास भूटान है और ये ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स हैं जो इसने इस तरह से दिखा रखे हैं, दीज आर द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और ये पासेस फिर से शो कर रखे हैं, वी हैव गॉट 3 to 4 मैप्स ऑफ पासेस। अब हम आपने अगर इसको याद करना है देन यू विल हैव टू ड्रॉ दीज पासेस योरसेल्फ। बानीहाल पास ये बड़ा फेमस है, जवाहर टनल, और ये डोडा और अनंतनाग को ज्वाइन करता है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं अगर ये टेररिज्म में या किसी कारण न्यूज में हो, शिपकीला पास सतलुज रिवर एंटर करता है इंडिया में तिब्बत से, शिपकीला पास। और बारालाचा ला, तो ये काइंगलैंग और ले के बीच है, रोहतांग पास कुल्लू और काइलैंग के बीच है। और बॉमडिला पास तेजपुर और तवांग के बीच है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तवांग इज ए कंट्रोवर्शियल प्लेस जिसे चाइना बार बार क्लेम करता है। पासिस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन से पासेस हैं, लेट अस सी इट। शिपकीला हिमाचल में, अंगला और नीतिला उत्तराखंड में, लिप्पू लेक ट्राई जंक्शन, ये भी नोट कीजिए, लिप्पू लेक इज ट्राई जंक्शन। तो मैं इसे इससे ही हाईलाइट करता हूँ, तो जैसे लिप्पू लेक, लिप्पू लेक इज बेसिकली ट्राई जंक्शन। तो ये हमारे पास एक ट्राई जंक्शन है, इंडिया इंडिया नेपाल और चाइना और उत्तराखंड। जीपला बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सिक्किम में है। नथुला इंडिया एंड चाइना। और ये चुम्बी वैली एक बड़े इंपॉर्टेंट वैली है, ये भी कंट्रोवर्शियल रही है, और हमारे चाइना के साथ जब लड़ाई होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पास। ट्रांस हिमालयन पासेस, काराकोरम पास एंड अगहेल पास, ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाल घाट बिटवीन पालाकाड एंड कोयम्बटूर, शैनकोटा, दिस इज बिटवीन कोल्लम एंड मदुराई। साउथ में एक कोल्लम इज ए वेरी गुड नेम, मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वो अभी हाईलाइट करने का फायदा नहीं है। खाल घाट इंपॉर्टेंट, मुंबई पुणे, बोथ नासिक एंड पुणे। The best known passes Pir Panjal range the best known passes of Pir Panjal ranges are Pir Panjal Pass, Bidil Pass, Gulabgarh Pass, and then Banihal Pass. Jammu Srinagar Highway uses Banihal Pass. Greater Himalayas or Himadri, the zone abruptly rises abruptly like a wall north of Lesser Himalayas. It is about 25 kilometers wide with average height of this. Himadri runs in an arc shape with length of 2500 kilometers. Nanga Parbat in the west to Namcha Barwa in the east. तो ये हमारे पास हिमाद्री कहाँ से रन करती है, नंगा पर्वत से। और नंगा पर्वत कहाँ पे है, वेस्टर्न में। और ईस्ट में नामचा बारवा, ये बिल्कुल बहुत दूर वाला पॉइंट है। दिखा दो मैं तुम्हें एक बार मैप में, नंगा पर्वत, वी विल हैव टू यहाँ पे नामचा बारवा है, थोड़ा सा मैप में नहीं आ रहा है, यहाँ यहाँ पे नामचा बारवा एंड दिस इज नंगा पर्वत। इतनी लंबी रेंज है इसकी।
this is northmost or the innermost of all the Himalayan range, Himadri. And then there is the northernmost, and yes, with an average height of 61 meter above the sea level. Loftiest and the most continuous mountain ranges, ये सारी रॉक की बनी हुई है, क्योंकि जब दोनों ने, अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनो, जब दोनों काफी हैवी हार्ड मासेस में कोलिजन होता है तो कुछ ब्रेकेज होती है। ब्रेकेज के बाद सॉलिड पोर्शन आ जाता है। जो सॉलिड पोर्शन है वो दीवार की तरह है, उसको तो हम ब्रेक ही नहीं कर पाए। तो अब जब हमारे पास इंडियन मास यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट ने हिट किया, तो जो पहली रेंज थी शिवालिक्स बनी, या उसके बाद एक आगे रेंज आई, फिर एंड पे हिमाद्री आ। जो हिमाद्री है, दिस इज द सॉलिड पार्ट। जो उससे हिमाद्री के जब हम साउदर्न एंड को मूव करते हैं तो शिवालिक्स है या मिडल हिमालयज है, वो सभी वो है जहां पे ब्रेकेज हुई है। तो इसीलिए उनका जो राइज है एब्रप्ट नहीं है, और एब्रप्ट राइज हिमाद्री का है, यहाँ पे रॉक लाइक जो माउंटेन्स है। अब द माउंटेन रेंज boasts of tallest peaks of the world and they remain perpetually under snow. तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर, माउंट एवरेस्ट के बाद सागरमथा, ऑल्सो कॉल्ड सागरमथा, और चोमोलंगमा, और उसके बाद रोहोतसी वन, माउंट अकालू, एंड देन कंचनजंगा, साउथ पीक, कंचनजंगा वेस्ट पीक। ये दो पीक्स हैं। तो वेस्ट पीक में भी मोस्टली इन इंडिया, लोहोतसा इंटरमीडिएट पीक, चाओ, तो ये हमारे पास 8100 सॉरी 53, एंड देन नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा याद रखिए, क्योंकि ये साउथर्न हिल होने का कंफ्यूजन डालता है। नेक्स्ट इज गुसाइथन और शीशा पंगमा, मकालू पीक ये है, और उसके बाद एक बुर्जिल पास है, ये जोजिला पास इन कश्मीर, बारालापचा शिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, थंगला एंड नीतीला इन लिपुलेख इन उत्तराखंड, नथुला एंड जिलीपला इन सिक्किम आर वर्थ मेंशनिंग। ये भाई पासेस का वो आप ना नक्शे में ड्रा कर, मैंने पासेस का मैप एक बार फिर से देखा है, तो अगर इनको मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो नथुला, जिलेपला, बमला, ठीक है, ऊपर जोजिला, दिस इज जोजिला, और जाराला और शिपकीला, मनुला, नीतिला, और इसके बाद यहाँ से उत्तराखंड का बारालाचा और लिपुलेख, लिपुलेख ट्राई जंक्शन है जैसे हम बोलते हैं। तो ये डिफू, यहाँ पे हमारे पास डिफू पास है ये, और बॉम्डिला पास, बॉम्डिला ला का मतलब पास होता है, बमला ला का मतलब पास, अगेन जिलेपला पास, नथुला पास, चावला भी पास इसके साथ है, चावला। तो इसमें भी देख सकते हो आप, बॉम्डिला पास उसने मिस किया हुआ है, डिफू दिहांग पास मिस किया हुआ है। तो ये तो सभी ने दे रखे हैं, शिपकीला, रोहतांग पास, बारालाचा पास, दिस इज बारालाचा पास, जोजिला पास, बानीहाल पास, बुर्जिल पास, ये देखिए बुर्जिल पास, काराकोरम पास, अघेल पास। तो नक्शे में यू शुड ड्रॉ इट। तो ये पासेस हमने एक बार सभी देख लिए। द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कनेक्टिंग शिमला विद गोलटक इन द वेस्टर्न तिब्बत पास, ये शिपकीला पास में से हमारे पास क्या आता है, सतलुज भी आती है, और ये एक रोड भी है जो हिंदुस्तान को तिब्बत से कनेक्ट करती है। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इज कलीम पोंग,
near Darjeeling, with Lhasa in Tibet. Whoever passes through Jilapla. Himadri runs like in the arc shape work from length this year तो पहले भी लाइन आ चुकी है. Then Trans Himalayas. ये 40 किलोमीटर इनकी विड्थ है और 40 किलोमीटर ईस्टर्न साइड पे है और 222 किलोमीटर जो इनकी विड्थ है सेंट्रल पार्ट में है. ईस्टर्न और जो वेस्टर्न पार्ट में इनकी विड्थ 40 किलोमीटर है, सेंट्रल में ज्यादा है. तो इसमें झस्कार रेंज आ जाती है, काराकोरम रेंज आ जाती है ट्रांस हिमालयस में, और कैलाश रेंज आ जाती है, और सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर की है, नुब्रा वैली. एंड देन देयर आर द पीक्स, दीज आर द पीक्स. K2 को गॉडवन एस्टिन भी बोलते हैं. गुरु शिखर अरावली में है और सतपुड़ा की धूपगढ़ महादेव हिल्स में पीक है, और ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी उड़ीसा में, और वेस्टर्न घाट्स में अन्नामुद्दी केरला में, और नीलगिरीज में डोडा बेटा. दिस इज सुसाइड पॉइंट. Hills in the southern hill complex Nilgiri, Annamalai, Cardamom and Palani Hills. Hills in the eastern Ghats, Shivorai, Javadi Hills और पालकोंडा, नालामाला और नॉर्दर्न सिरकार. ये हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार. Oblique ranges to the western Ghats in Maharashtra, Ajanta, Satmala, Harishchandra और बालाघाट. तो इसके बाद सतपुड़ा रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अमरकांटक प्लेटो है जहां से हमारे पास नर्मदा निकलती है. अमरकांटक प्लेटो में जो माउंटेन पीक्स कौन सी हैं? मैकल, महादेव, गाविलगढ़ एंड राजपिपला हिल. हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार इज सैडल पीक. हाईएस्ट पीक इन नागा हिल्स इज दिस सारामती पीक, एंड दिस इज सैडल पीक. So we have done with the introductory part of physical geography, and I advise all of you to go through these maps. And with this, I finish today's lecture, and we will meet in the next lecture tomorrow. Thank you.